Friends, welcome back to English Master. Today we are going to learn a chapter of class 8th. The name of the chapter is the Indian Constitution. This is very first chapter of civics. So let us begin. In this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. तो आज के चैप्टर में हम किससे शुरुआत करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम विच इज़ नेम्ड एज फुटबॉल. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इसका नाम सुना भी होगा एंड मैनी ऑफ यू माइट हैव प्लेड दिस गेम एज वेल. So the name suggests this is a game that involves the player's feet. So football means a game which is played using feet. तो feet का use करके हम ये game खेलेंगे. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. तो रूल क्या है गेम का कि जिसमें जो भी आर्म है जो किसी भी प्लेयर की टच होती है किसको छोड़ करके गोलकीपर को, तो ये क्या समझा जाएगा? एक फाउल समझा जाएगा. सो इफ प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स and passing it around, then they are not playing football anymore. Similarly, other games such as hockey or cricket also have rules according to which they are played. तो अगर इसमें क्या होता है, दे आर यूजिंग द हैंड्स एंड पासिंग द बॉल, सो इट विल नॉट बिकम अ फुटबॉल एनी मोर. तो ये गेम फुटबॉल होकर से हट करके क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा. ऐसे ही दूसरे गेम होते हैं जैसे कि हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड. तो इनके भी कुछ रूल्स होती हैं जिनसे ये प्ले किए जाते हैं. ईच ऑफ दीज रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम एंड हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. तो ये गेम जो होते हैं सबके अपने अलग रूल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वी कैन मेक अ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स. As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. तो ये गेम के क्या होते हैं? फंडामेंटल रूल्स होते हैं हर गेम के. Like these games, a society also has constitutive rules that make it what it is and differentiate it from other kinds of society. जिस तरह से गेम होते हैं, सो इट हैज़ बीन कंपेयर्ड कि जैसे गेम होते हैं वैसे सोसाइटी होती है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें कि हम फॉलो करते हैं. तो यही हमें दूसरी सोसाइटी से अलग करते हैं. सो दे आर हेल्पफुल टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर सोसाइटीज़. In large societies in which different communities of people live together, these rules are formulated through consensus, that means agreement. And in modern countries, this consensus is usually available in written form. तो जहाँ लार्जेस्ट सोसाइटी होती है वहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं. तो ऐसी कम्युनिटीज़ के लिए क्या होते हैं? जो रूल जो होते हैं वो अग्रीमेंट होते हैं जो बनाए जाते हैं. तो मॉडर्न कंट्रीज़ में जो है ये सब रिटन फॉर्म में अवेलेबल हैं. अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन? अ written document which is an agreement and have all the rules and regulations written is known as constitution. We have looked at the Indian Constitution in class 6 and 7 in our social and political life textbooks. Have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? In this chapter, we will discuss both these issues and also look at the key features of the Indian Constitution. तो आपने कभी वंडर किया कि why we need a constitution? We can also run a country without a constitution as well. So why it is needed and why they are written and who has written those? And in this chapter, we are going to learn all about the features of our Indian Constitution. In each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapter in this book. तो ये सारे जो है फीचर्स किए गए हैं इसमें डेमोक्रेसी इन इंडिया को फीचर करते हैं और ये जो है इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. Why does a country need a constitution? So first question arises, एक country को constitution की ज़रूरत क्यों होती है? So here we will see in 1934 the Indian National Congress made a demand for a constituent assembly. During the Second World War, this assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained
momentum, and this was convened in December 1946. The photo on page 2 shows some members of the Constituent Assembly. तो this is what happened. कब हुआ था ये? 1934 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दौरान हुआ था ये. तो ये बोला गया था कि हमें एक असेंबली चाहिए जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे. Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. तो 1946 से 1949 के बीच में इन लोगों ने मिल के, सो इट टुक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इन्होंने मिल के इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए था. Free to shape their destiny at last, after 150 years of British rule, the members of the Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce. You will read more about the work of the Constituent Assembly later in the chapter. तो हमारे यहाँ अंग्रेजों ने कितने साल राज किया? 150 years they ruled our country. Later on, when they were released, they were thrown out of the country. Then this struggle helped out to bring about new changes in our country. So this is what people thought of, and they started drafting the constitution. The photo alongside shows Prime Minister Jawaharlal Nehru addressing the Constituent Assembly. तो आप देख सकते हैं यहाँ इस पिक्चर में कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स हैं, and here he is addressing. टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो सारी कंट्रीज़ में लगभग कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न फॉर्म में है. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. So it is not necessary कि जो country democratic हैं वो उन्हीं के पास constitution हो. Other countries that are not democratic, that are kingdoms, also have constitution. The constitution serves several purposes. इसके क्या पर्पज़ होते हैं, क्या क्या सर्व कर सकता है ये हमें? First, it lays out certain ideals that form the basis of kind of country that we citizens aspire to live in. सबसे पहले तो ये कंट्री का काइंड बताता है कि किस तरह की कंट्री है जिसमें हम रहते हैं. और put another way, a constitution tell us what the fundamental nature of our society is. तो constitution डिस्कस करता है और ये बात को फिगर आउट करता है कि हम किस तरह के नेचर है हमारी सोसाइटी का जिसमें हम रहते हैं, जो बेसिक है, फंडामेंटल है. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues. तो एक कंट्री जो होती है वो किस में? डिफरेंट कम्युनिटीज से होती है, बिकॉज वी ऑल्सो लिव इन अ कंट्री विच इज हैविंग डिफरेंट कम्युनिटीज. सो नो कंट्री इज विथ सिंगल कम्युनिटीज, ऑल द कंट्रीज हैव ऑलमोस्ट डिफरेंट कम्युनिटीज. तो ये इसमें सब क्या होते हैं? सबके अग्री करने के लिए सब उसमें शायद उसको बिलीफ को अग्री ना कर पाए, तो ये ध्यान में रखकर ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर होता है. अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स and principles that all persons in the country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. So it is kept in mind that the people who are living do not belong to one community, they all belong to different communities. So keeping this thing in mind that their purposes should be served, so the community prepares, the constituent prepares a constitution which can serve all the people and they all can agree upon the statements. तो अग्रीमेंट जो तैयार होता है वो इस बात पर होता है कि जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं उन सबको ध्यान में रखकर, ताकि उन सबको उससे बेनिफिट मिले. दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन अग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड. तो ये सब इसमें क्या होता है? एक ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जिसमें एक कंट्री को आइडियल बना दिया जाए जो कि उसमें सब कंट्री के साथ मिक्स होकर दिखाई दें. तो ये देखिए, ये पिक्चर जो है वो नेपाल की है. हियर वी विल लर्न व्हाट हैपेंड इन दिस पिक्चर. द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस्ड सेवरल पीपल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी. तो कंट्री नेपाल जो था वो पहले एक किंगडम था, तो इसमें बहुत सारी स्ट्रगल हमें देखने को मिली है कि कैसे डेमोक्रेसी यहाँ आई. देयर वॉज अ पीपल्स स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी that lasted for 12 years until 2002.
तो यहाँ क्या हुआ, पीपल ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर स्ट्रगल किया 1990 में। तो इनों के यहाँ 12 ईयर्स के बाद 2002 में दोबारा से डेमोक्रेसी आई। इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्रा, citing the Maoist uprising the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance। तो ये नया एक किंग जो आया जिसका नाम क्या था, ज्ञानेंद्र था, तो उसने क्या किया, आर्मी की हेल्प ली और उससे उसने बहुत सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया। द किंग देन फाइनली टुक ओवर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन February 2005, और इस तरह से वो अपने आप को किंगडम, उसने फिर से उसमें एज अ किंग गवर्न करना शुरू कर दिया। सो दिस हैपेंड इन February 2005। In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to the larger public an imminent rule to the democracy and peace। अब क्या हुआ, ये पार्टी में, ये माओइस्ट में जो भी अलग थे वो अलग हो गए, जो लोग उनके साथ थे उन्होंने दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली और उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट दूसरे बनाए। तो इससे क्या हुआ, सारी पब्लिक उनके साथ जुड़ गई। इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगैन गेनिंग इमेंस फोर्स। तो 2006 में ये डेमोक्रेसी में बहुत सारी फोर्स आ गई। सो दे ऑल बिकेम टुगेदर बिकॉज दे डिड नॉट लाइक व्हाट ज्ञानेंद्र हैड established over there. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form the government। तो फिर क्या हुआ, अब उसके पास he has no other way out, so he re-agreed upon what they had told। तो अप्रैल 2006 में उन्होंने उसी को, पार्लियामेंट को रिस्टोर किया जो पहले चलती थी, और पार्टी से कहा कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो 2007 में नेपाल अडॉप्टेड एन इंटरिम मीन्स टेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2007 में उनके यहाँ एक टेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशन आया। द अबव फोटो शोज सीन्स फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006। सो दिस पिक्चर इज शोइंग हाउ पीपल वर फाइटिंग फॉर गेटिंग द डेमोक्रेसी इन 2006। Now let us come here. Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until quite recently, Nepal was a monarchy. Monarchy, you know, the country which has kingdom. The previous constitution of Nepal, which had adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king। तो यहाँ पर क्या था, मोनार्ची थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का था उस 1990s में, उसमें ये बताता था कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो किस पर जाती थी, किंग पर। सो द लास्ट डिसीजन वॉज टेकन बाय द किंग। नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और एनी अदर पर्सन कुड इंटरप्ट इन with the decisions which was taken by the king. A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy। फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के मूवमेंट हुए जिन्होंने नेपाल में क्या किया, बहुत सारे डिकेड्स तक डेमोक्रेसी लाने के लिए उन लोगों ने लड़ाई की। एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। सो दिस इज हाउ, दिस वी ऑलरेडी लर्न दैट इन 2006 दे वर एबल टू put those to an end, the powers of the king। Now the people have to write a new constitution to establish Nepal as a democracy। जब 2006 में ज्ञानेंद्र को हटा कर दोबारा से उन्होंने उसको किंगडम दिया तो उन्हें किसकी ज़रूरत थी, अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, क्योंकि एक नेपाल जो था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चुका था। द रीज़न दैट दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी। तो पहले भी था कॉन्स्टिट्यूशन but they did not like it। Why? Because they thought that this doesn't have all the ideals that our country should have, so they tried to write another one and they have fought for, और उसी के लिए वो लड़े भी थे। As in the game of football in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society। तो जिस तरह से हम गेम खेलते हैं फुटबॉल का, तो उसमें हम जब अगर रूल चेंज करेंगे तो गेम ही चेंज हो जाएगा। सेम वे व्हाट हैपेंड व्हेन द
country had monarchy and it was supposed to be a democratic country, so all the rules were supposed to be changed because this was a new society which was coming to an usher. उभर कर जो आने वाली थी एक नई सोसाइटी थी, तो एक किंगडम से एक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक होती है उसमें आने में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन को भी दोबारा लिखा जाए. This is why the people of Nepal are in the process of writing a new constitution for the country. The caption alongside elaborates Nepal's struggle for डेमोक्रेसी. तो वहाँ के लोग अभी भी जब ये चैप्टर लिखा गया है तब तक भी वो लिख रहे थे, और जो कैप्शन है वो उसमें स्ट्रगल बताता है कि उन्होंने नेपाल के लिए, नेपाल में डेमोक्रेसी लाने के लिए कितना स्ट्रगल किया. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पस of a constitution is to define the nature of a country's political system. तो दूसरा पर्पस क्या होता है कि उसमें पहला पर्पस हमने क्या सीखा कि वो आइडियल होना चाहिए कंट्री के लिए और वो सबको ध्यान में रखकर लिखना चाहिए. सो इट शुड कीप ऑल द कम्युनिटीज इन माइंड ऑल टुगेदर बिकॉज अ कंट्री हैज़ मोर देन वन कम्युनिटी. अब दूसरा पर्पस हम पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या था कि जो पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम को बताए. फॉर एग्जांपल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि एक किंग होगा और उसकी काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की, वही उस पर रूल करेंगे. In countries that have adopted a democratic form of government or policy, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies. तो जो कंट्री है, गवर्नमेंट है, उसमें बहुत सारी जो है पॉलिसी चेंज हुई हैं, जिससे कि उन्होंने क्या बताया है कि नई गाइडलाइन, एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस तैयार हो जिससे कि डिसीजन मेकिंग किसके पास आ जाए, सोसाइटीज़ के पास आ जाए, वो उनके पास ना रहे किंग और मिनिस्टर्स के पास. In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf. तो डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, हम अपने लीडर्स खुद इलेक्ट करते हैं तो ताकि उनके साथ हम अपने पावर्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबल हाथों में दे सकें. However, there is always the possibility that these leaders might misuse these authority. But the problem is when we give the charges to these people, we cannot make sure that they will surely use them properly. We have always a fear that they will misuse it. तो प्रॉब्लम यही आ जाती है. And the constitution usually provides safeguards against this. तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ काम करता है किसका, सेफ गार्ड करने के लिए कि उनके हाथ में जब पावर आ जाए तो वो उसका मिसयूज़ ना करें. तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स रहते हैं कि किस तरह से हम उससे सेफ गार्ड कर सकते हैं. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. तो हम इस सिचुएशन को ध्यान में रख के जब समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि ये अथॉरिटी जो इसका मिसयूज़ कर लेती हैं तो ये ग्रॉस मीन्स बड़ा, टोटल इनजस्टिस हो जाता है, जैसे कि इस क्लासरूम सिचुएशन में दिखाया गया है. सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ बुली. तो सुरेश जो है वो क्लास मॉनिटर है, वो बुली है, दूसरे बच्चों को तंग करता है. हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फंड ऑफ हिम. तो उसके क्लासमेट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते. मिसिज राव, द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लासरूम और सम अर्जेंट वर्क. शी आस्क्स सुरेश टू माइंड द क्लास. सुरेश स्टार्ट्स पिकिंग ऑन अनिल. तो हम देखते हैं कि सुरेश जो है वो एक बुली बॉय है एंड ही डज नॉट लाइक सम ऑफ द चिल्ड्रन, इवन चिल्ड्रन डू नॉट लाइक हिम एज वेल. सो आफ्टर मिसिज राव द टीचर लीव्स द क्लास एंड शी गिव्स हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ. व्हाट ही स्टार्ट्स डूइंग, ही स्टार्ट्स पिकिंग ऑन अनिल. वो उसको टीज करने लगता है. अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिज राव. तो कहता है व्हाट आई हैव डन. तो वो कहता है मैम, When Mrs. Rao returns to the class, तो बताता है मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. तो ऐसा होता है जब हम जिसे पसंद नहीं करते और जैसे ही मौका मिलता है हम उसकी शिकायत टीचर से करते हैं. तो यहाँ भी हम देखते हैं सुरेश के आते के साथ ही वो अनिल के बारे में टीचर को शिकायत करता है.
Anil, you will have to stay back after school today and write, I will not disobey the class monitor at 100 times. So this is the punishment given by the teacher to the boy कि तुम्हें रुकना है और 100 times लिखना है कि तुम अब कभी भी इसको डिसोबे नहीं करोगे. बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग. तो वो बताता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया. तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि दीज आर द सिचुएशंस बिकॉज टीचर डज नॉट नो व्हाट हैड हैपेंड in the class when she was not there. So this is how the things happen and people misuse. So you can understand the boy, he has misused his power here. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. तो democratic countries में भी ऐसा ही होता है. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसको फॉलो नहीं करते, वो अपने तरीके से अपने रूल्स बना लेते हैं. इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन द चैप्टर, मैनी ऑफ दीज लॉ आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स. तो इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है इसमें बहुत सारे बेसिक राइट्स भी लिखे गए हैं. बिकॉज यू शुड नॉट बी फेसिंग डिफिकल्टी वाइल यू आर अंडर एनी ऑफ द लीडर. Do you recall the chapter on the Dalit writer Om Prakash Valmiki on experiencing in school from your class 7 book? In that chapter we talked about the discrimination Om Prakash faced because he was Dalit. तो हमने 7th की बुक में पढ़ा था कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित था इसलिए उसको सब टीज करते थे, उसके टीचर ने उससे सफाई करवाई थी. सो यू मस्ट रिमेंबर द चैप्टर. तो हमने देखा कि उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया था बिकॉज ही वॉज अ दलित, ही बिलोंग टू अ लो कास्ट. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and say that no citizen can be discriminated against on grounds of religion, race, caste, gender and place of birth. तो ऑन इक्वालिटी में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, यू कैन नॉट मेक द डिस्क्रिमिनेशन किसी को भी किस पर, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन पे, रेस या कास्ट या जेंडर या फिर उसके प्लेस ऑफ बर्थ पे. द राइट टू इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो पावर में कोई भी आए वो आपका ये फंडामेंटल राइट आपसे नहीं छीन सकता. ही ऑल्सो डजंट हैव अ राइट टू टेक अवे योर fundamental right which is to be not to be discriminated and to be treated equally, because it is not mandatory that you should be belonging to any specific religion, race, caste, gender or any place of birth. तो यहाँ कुछ situations दी गई हैं. In what way is the class monitor misusing his power? Because he is given a chance. So you can understand how he is misusing. He is blaming a boy who did not even do anything in the class. So you can understand people even can blame when you have done nothing. In which of the following situation is a minister misusing his power? तो हम यहाँ ये situations दी गई हैं, आप बताइए इसमें से कौन सी situation है जहाँ पर एक मिनिस्टर अपनी पावर्स को मिसयूज कर सकता है. तो नंबर ए है refuses to sanction a project of his ministry for sound technical reasons. टेक्निकल रीजंस की वजह से वो एक प्रोजेक्ट को जो है रिफ्यूज़ कर देता है, सैंक्शन नहीं करता. दूसरी कंडीशन है थ्रेटन्स टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू रफ अप हिज नेबर्स, और अपने नेबर्स को धमकी देता है कि वो उसके जो सिक्योरिटी स्टाफ है जाके उसको उसके घर को जो है वो तोड़ फोड़ देंगे. कॉल्स अप द पुलिस स्टेशन आस्किंग देम नॉट टू रजिस्टर अ कंप्लेंट दैट इज़ लाइकली टू बी फाइल्ड अगेंस्ट हिज रिलेटिव. या पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पुलिस वालों को धमकी देता है और अपनी पावर को मिसयूज़ करते हुए कहता है कि वो अगर उसके रिलेटिव के खिलाफ जो कंप्लेन आई है उन्होंने लिखी तो वो उसके लिए तैयार हो जाए कि उनके साथ क्या होगा. सो एनी वन सिचुएशन विल बी फॉर दिस फेवरिंग दिस. सो यू विल हैव टू थिंक एंड टिक इट द करेक्ट वन. So students, we will be learning in this part till here. In part 2 we will be covering the other part of the chapter. So we will soon meet in the next video. Do not forget to subscribe the channel to get updated. Till then, take care.